ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 25 ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ these questions are just for ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਾਂ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the major aerosol pollutants in jet planes emissions is, ठीक है। जेट प्लेन emissions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਜਰ pollutants ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? among these the options are sulfur oxide, carbon monoxide, methane and fluorocarbon, and the right जो आंसर है that is fluorocarbon। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, द गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, ठीक है। मैं जो आप डिस्कस किया है मैं लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ? ਮਿਥਾइल आइसोसाइनेट, पोटाशियम आइसोथायोसाइनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट और इथाइल आइसोथायोसाइनेट। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿਥਾइल ਗੈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਥਾइल आइसोसाइनेट है। सो कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, so on the night of December 2nd 1984, the chemical methyl isocyanate, that is MIC, splits out from Union Carbide India Limited's UCIL's pesticide factory. This was a pesticide factory that turned the city of Bhopal into a colossal gas chamber. It was India's first major industrial disaster. So the right option is answer option A, that is methyl isocyanate. Next question है, the acid rain is formed due to increase in the concentration of which one of the following pair, ठीक है। सो जो एसिड रेन है, क्योंकि ਅਸੀਂ बहुत टाइम तो एसिड रेन बारे सुनते ही आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ਅਸੀਂ एसिड रेन बारे। एसिड रेन, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, carbon dioxide and carbon monoxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, and sulfur dioxide and nitrogen dioxide. So the right answer is that acid rain result when the sulfur dioxide and nitrogen oxides, ठीक है, मतलब कि sulfur and nitrogen oxides करके जो है acid rain बनती है। बट बनती किमें है? they are emitted into the atmosphere and transported by wind, ठीक है। सब तो पहला की होंदा है ये एयर के कॉन्टैक्ट च आते हैं या कह लो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट च आते हैं, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट के विच आके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड दैन वाटर नाल जो है रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक एसिड की ही टाइप है, ठीक है। एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब है। उसी तरह जी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो भी पहला एयर के कॉन्टैक्ट आती है, मतलब कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट आके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर नाल रिएक्ट करके HNO3 या HNO2 बनाती है, ठीक है। सो दिस HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड एंड दिस HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है। सो की होंदा है दिस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर ते ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके या कुछ और भी कैमिकल्स हो सकते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। दो तरह के एसिड बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये भी थोड़ा मे भी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ताजमहल का जो है येलोइश होने का जो रीजन है वो भी यही है। सो दिस दैन मिक्स विद वाटर एंड अदर मटीरियल बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी दे कॉज जो है, बायोडाइवर्सिटी का कॉज
ऑफ लॉस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕੌਜ਼ ਨੇ, that is habitat pollution ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਪਾਰਥੀਨੀਅਮ ਹੈ, हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਥੀਨੀਅਮ ਹੈ, दैट इज कॉमनली कॉल्ड कांग्रेस ग्रास है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी चीज़ का ओवर यूज़ कर लेना, किसी सोर्स का ओवर यूज़ करना। एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है उसनों उजाड़ देना। सो जे असी देखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही है। जे तुसी किसी ऑर्गेनिज्म के घर नूं ही उजाड़ दोगे तो वो स्पीशीज़ खत्म हो ही जाएगी। सैकेंड जो इंपोर्टेंट कॉज है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़। ठीक है, सानू हो सकता है अगले पेपर के भी सैकेंड कॉज भी पूछा जाए। सो दैट कुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट रिडक्शन। हो सकता है नैक्सट टाइम के एग्जाम के हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्शन रिडक्शन भी पूछा जा सके। नैक्सट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पीशीज़ विद इन देयर नैचुरल हैबिटेट। तुसी किसी ये भी अगेन बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, जे तुसी किसी स्पीशीज़ नूं कंजर्व करना है विद इन देयर नैचुरल स्पीशीज़, थोड़े कोल कंजरवेशन के दो तरीके हो सकते हैं। थोड़े कोल कंजरवेशन लई दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तुसी उसनूं उसदी नैचुरल हैबिटेट दे विच मतलब तुहानूं वो जिथे भी तुसी उन्होंने संभालना चाहते हो, तुसी जिस जगह ते उन्होंने उसकी हालत च देखा तुसी उत्थे ही उन्होंने संभाल लो, या फिर आउटसाइड इट्स नैचुरल हैबिटेट, या तुसी उसकी हैबिटेट तो उन्होंने किते होर ले जाके भी कंजरवेशन कर सको। जे तुसी उन्होंने विद इन नैचुरल मतलब विद इन नैचुरल हैबिटेट करते हो, सो इट इज़ नोन एज इन सीटू। एंड जे तुसी उन्होंने उसकी नैचुरल हैबिटेट तो बाहर लिया के कंजर्व करते हो, इट इज़ नोन एज एक्स सीटू। इनू याद रखने का सौखा तरीका है, देखो ये सीटू वर्ड का जो मतलब है दैट इज़ सिचुएशन। तुसी किसी भी स्पीशीज़ नूं उसकी सिचुएशन दे विच, ठीक है, मतलब जिस जगह ते तुसी उन्होंने देखा उसे तो उन्होंने कंजर्व करोगे, दिस इज़ कॉल्ड इन सीटू। जे तुसी उन्होंने एक्स सीटू मतलब उसकी सिचुएशन तो बाहर ले जाके करोगे आउटसाइड इट्स नैचुरल हैबिटेट, दिस इज़ कॉल्ड एक्स सीटू। क्वेश्चन के थोड़ा पूछा गया है विद इन देयर नैचुरल, विद इन है तो दैट इज़ इन सीटू कंजरवेशन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तुसी शब्दों को तोड़ना सीखो तो उन्होंने मतलब कटना सीखो, को आंसर थोड़ा जो है अपने आप मिलेगा। द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इकोसिस्टम is known as in situ conservation. In the process, the natural surrounding or ecosystem is protected and maintained so that all the constituent species, known or unknown, are conserved and benefited. So the right option was option A. Next है sixth question. A high biological oxygen demand indicates that, ठीक है, मान लो किसी भी एरिया दी जो है BOD जिन्हों असी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा है तो की इंडिकेट करी है, इट इंडिकेट दैट वाटर इज़ प्योर कि उतों का पानी साफ है, एबसेंस ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन कि उतने किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है, लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन बहुत घट माइक्रोबियल पोल्यूशन है, या हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हों थोड़ा ध्यान नाल देखना। लेट अस सपोज कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, उस दे विच की है थोनों दस्या होया कि उत्थों दी जो BOD है, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत हाई है, मतलब इंक्रीज होगी ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ गई। देखो ऑक्सीजन का एक्चुअल दे विच यूज़ की है, जी ऑक्सीजन है ਇਹਦਾ जो यूज़ की है, ਇਹਦਾ यूज़ है डीकंपोज करना, डीकंपोजिशन मतलब कि जो गलियां सड़ियां चीज़ां ने या जो भी वेस्ट है उन्होंने गालना, ठीक है, उन्होंने साड़ देना, उन्होंने बिल्कुल ख़त्म करना। मान लो कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है डीकंपोज ਲਈ, या फिर तुसी होर एक सौखा तरीका मान लो, लेट अस सपोज कि इस दे विच बहुत सारा वेस्ट है, ये जो मैं ग्रीन शो कर रहा बहुत सारा वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी वेस्ट है। हुण इसनूं खत्म करने लई सानूं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देनी पै रही है, बहुत ऑक्सीजन यूज़ हो रही है क्योंकि हाई ऑक्सीजन दस्या सानूं, सो ये बहुत यूज़ हो रही है। ठीक,
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ that oxygen is required for the decomposition of microorganism under the water, increase in waste and pollution enhances the decomposition, मतलब कि जिन्ना वेस्ट ਜਾਂ pollution ਵਧੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਉਸ ਲਈ decomposition एक्टिविटीज़ भी जो है ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੇਗੀ, ठीक है। सो hence a high demand of oxygen, that is biological oxygen demand, indicates higher level of microbial pollution. So the right option is option D. Next question, that electroporation facilitates the introduction of foreign DNA into the target organism by, ठीक है। electroporation की है, electroporation जो है मतलब कि तुसी किसी भी सैल दी जो सैल वॉल है, ठीक है, उसनू इलैक्ट्रिक करंट दे के उस पोर्स बना दो, ठीक है, उस पोर्स बना दो तो जो भी साडा टारगेट DNA है असी इस दे थ्रू उन्होंने अंदर भेज सकीए। सो क्वेश्चन है, इट फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन DNA इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय, किस तरह आप कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सैल वॉल, मतलब इसकी पोरोसिटी को चेंज करके इसका पोर साइज को घटा दिए वधा दिए जो भी है। चेंजिंग द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि सानू पता है कि जो DNA है वो नैगेटिव चार्ज का है, तो असी इतने पॉजिटिव कर दिए, ठीक है, फिर तो वो एक दूजे हो सकता है अट्रैक्ट करन, ठीक है, या क्योंकि सेम चार्ज एक दूजे को रिपेल कर देने हैं। उस तो बिना लाइसिस ऑफ सैल वॉल, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, सैल वॉल तोड़ दिए, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सैल वॉल, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सैल वॉल मतलब असी ATP हैल्प नाल जो एनर्जी दे के उन्होंने ट्रांसपोर्ट करिए। सो वट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज बाय चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ सैल, ठीक है, सैल वॉल, असी सैल वॉल की पोरोसिटी चेंज कर दी, मतलब कि ये सैल है एंड ये साडा टारगेट DNA है, असी इनू जे अंदर भेजना है तो असी की करांगे, इस दे विच असी इहदी पोरोसिटी चेंज कर दिए, मतलब कि जे पोर साइज़ नू असी थोड़ा जा इन्ना कर दिए, इस दे पोर साइज़ नू वधा दिए तां जो ये अंदर जा सके, ठीक है। सो असी इहदी पोरोसिटी चेंज कर सके इनू ट्रांसफर कर सकते हैं। So the right option is option A. Next question है, which one of the following is the best method to determine the bacteriophage concentration in a sample? So आप पहला भी डिस्कस किया होया एक बारी कि बैक्टीरियोफाज की है जो वायरस इन्फेक्ट कर दे बैक्टीरिया नू, सो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज़ बैक्टीरियोफाज। सो इन्हां विचों किहड़ा मैथड है कि बैक्टीरियोफाज कंसनट्रेशन कि किन्नी क डिसीज़ फैल गई या किन्ना पैथोजन फैल गया उसनू डिटैक्ट करने लई इन्हां विचों किहड़ी टैक्नीक है जो वधिया यूजफुल है। पहला तो असीं टैक्नीक्स बारे जान लीए, टैक्नीक्स तो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पैक्ट्रोमीट्री है, स्पैक्ट्रोफोटोमीट्री है, प्लैक एसे है, कॉपी एसे नंबर है एंड लाइट माइक्रोस्कोप। सो स्पैक्ट्रोफोटोमीटर की है, स्पैक्ट्रोफोटोमीटर की जो एप्लीकेशन ने दे आर यूजफुल इन मैजर द एब्जॉर्बेंस, रिफ्लैक्टेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाय गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। देखो इतने कितने भी पैथोजन की गल तो आई थिंक नहीं की गई, ठीक है। सो पैथोजन को फड़न लई या उन्होंने कैप्चर करने लई सानू एब्जॉर्बेंस का भी कोई मतलब नहीं, रिफ्लैक्टेंस का, लाइट का, लिक्विड सॉलिड का, मतलब ये ऑप्शन तो साड़ी एलिमीनेट होगी। प्लैक एसे जो है इट्स यूज टू काउंट इन्फेक्शन पार्टिकल, इसनों असीं रख सकते हैं क्योंकि इतने इन्फेक्शन की गल की गई है, पैथोजन जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। कॉपी एसे नंबर डिटैक्ट द टारगेट सीक्वेंस, मतलब कि यह DNA की सीक्वेंस नू टारगेट सीक्वेंस जो उन्होंने असैस करता है, ये भी साढ़े क्वेश्चन तो रिलेटेड नहीं है। लाइट माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल ही अलग है, हालांकि इन्हों असीं यूज़ तो करते हैं, मतलब ये थोड़ा ट्रेडिशनल मैथड है, पुराना तरीका है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म नू माइक्रोस्कोप नीचे देखना। सो इस दे विचों जो राइट आंसर वो यही है कि उसके इन्फेक्शन पार्टिकल्स नू काउंट करना, ठीक है। सो द राइट आंसर इज प्लैक एसे इज द बेस्ट मैथड टू यूज द to determine the bacteriophage concentration in a sample. So the right answer is option B. Ninth question, a protein is poorly expressed
in a diseased tissue to determine whether the defect is at the level of transcription or translation, which of the following blotting technique will be employed। देखो क्वेश्चन ਨੂੰ समझो, सब तो पहला था कई बार ਤਾਂ स्टूडेंट्स की करते हैं वो क्वेश्चन ਨੂੰ देख के डर जाते हैं। देखो a protein was poorly expressed in a diseased tissue, मतलब कोई भी डिसीज टिशू है, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ डिसीज टिशू ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ डिसीज टिशू है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵੈਦਰ ਡਿਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ मतलब कि ਹਜੇ ਤੱਕ RNA ਤੋਂ DNA नहीं ਬਣਿਆ, ठीक है, RNA ਤੋਂ DNA बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उस तो बिना या फिर ट्रांसलेशन की प्रोटीन बन गया पर कोड नहीं होया, ठीक है, कोई तो डिफेक्ट है ही जिस करके प्रोटीन नहीं आ रहा, तो असी पता करना कि वैदर द डिफेक्ट इज एट द लैवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि वो ट्रांसक्रिप्शन के लैवल पर है, मतलब DNA तो RNA बन रहा है या फिर RNA तो प्रोटीन्स जो ने बन रही ने, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग टेक्निक, असी इन्हां विचों किहड़ी ब्लॉटिंग टेक्निक नू यूज़ करांगे ये चैक करने वास्ते, ठीक है। तो सानू एक तो असी ये देखना है कि RNA बनया या नहीं बनया, एक असी प्रोटीन बारे देखना है, तो सानू पता होना चाहिए है कि ब्लॉटिंग टेक्निक वैसे है कि वैसे तो पहला तुसी देखो ब्लॉटिंग टेक्निक्स की ने, तीन तरह दी ब्लॉटिंग टेक्निक ने, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड वैसटर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज फॉर DNA, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि सदर्न जो है किस लिए यूज होती है, नदर्न किस लिए। सदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर DNA, नदर्न ब्लॉटिंग फॉर RNA एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। सो असी चेक करना है कि जो साडा जो भी डिसीज टिशू है वो एट द लैवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। जे ट्रांसक्रिप्शन लिए देखना है तो असी देखांगे उसका DNA देखांगे एंड प्रोटीन तो असी चेक करांगे ही करांगे। तो असी केड़ी टेक्निक वरतांगे, असी सदर्न ब्लॉटिंग एंड वैसटर्न ब्लॉटिंग। तो क्वेश्चन है एक तो वैसटर्न ब्लॉटिंग असी यूज़ करांगे, यस, एंड सदर्न वैसटर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, मतलब वही पूछा गया है। सो द सदर्न साउथ वेस्ट ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू स्टडी DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये तुसी याद रखना है कि किस तरह की जो ब्लॉटिंग है वो किस तरह के जेनेटिक मटीरियल यूज होती है। नैक्सट क्वेश्चन, द रिकॉम्बिनेंट DNA ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिवेलप्ड फॉर ट्रीटिंग हेमोफिलिक्स इज, ठीक है, एक डिसीज़ है, इस दे विच तुहानूं पूछा गया कि इन्हां विचों जो रिकॉम्बिनेंट DNA ह्यूमन हेल्थ प्रोडक्ट है उस दे विच जो नीचे दिते गए ने इन्हां विचों किहड़ा प्रोडक्ट जो है यूज़ हुंदा है। सो ऑप्शंस आर इंटरफेरॉन, लिम्फोकाइन्स, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9, फाइटो हीमैगुलेटिन। तुसीं एक बारी ध्यान नाल देखो, हीमोफिलियसिस, ठीक है, हीमो, ठीक है, ये जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। सो एक डिसीज़ है जिहदे विच जो है ब्लड क्लॉट नहीं हुंदा, मतलब थोड़ा जो खून है वो जमदा नहीं है। एंड तुहानूं पता होना चाहिए जिथे भी असी ब्लड कोएगुलेशन की गल करते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की गल करते हैं, असी रिकॉम्बिनेंट जो फैक्टर ने या क्लॉटिंग फैक्टर्स ने उन्हां दी गल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी द राइट आंसर। असी फिर भी इस देख लिए कि इंटरफेरोन्स की है जो भी है। सब तो पहला तो हीमोफिला की गल जो क्वेश्चन के डिसीज़ दसी है की है, दिस इज़ यूजली एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, खून जो है वो पूरी तरह नहीं जम पाता, ठीक है, जमता नहीं है। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 की है, एक्चुअल इतने रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 है। इट हैज़ अ बायोलॉजिक एक्टिविटी कंपेरेबल टू दैट ऑफ प्लाज्मा फैक्टर, प्लाज्मा का काम ही खून नूं क्लॉट करवाना है। एंड इट इज़ सेफ एंड इफ एफिकेशियस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफिला ए। सो साडा राइट ऑप्शन ए ही बनता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9। इंटरफेरॉन की है, इंटरफेरॉन तो रिलेटेड भी तुहानूं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंटरफेरॉन जो है वो साडी बॉडी दी इम्यून सिस्टम दे विच यूज़ हुंदा है बहुत ज़्यादा। एंड मेजरली कैंसर दे जो ट्रीटमेंट्स इन्हां दे विच इंटरफेरॉन्स यूज़ हुंदे ने। एक क्वेश्चन नीट वर्गे एग्जाम दे विच पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्फोकाइन्स की है, दे आर द साइटोकाइन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय T lymphocyte cell of the immune system। फाइटो हीमैग्लूटिन PHA भी बोलते हैं, इट इज़ अ लैक्टिन दैट इज़ फाउंड इन प्लांट, ठीक है, एक लैक्टिन है जो प्लांट के विच मिलता है। काम की है,
ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿਗਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕਾਜ਼ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਟੂ ਕਲੰਪ ਟੂਗੈਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਲੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਕੋਮਬੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੀਮੋਫੀਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11th क्वेश्चन है द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोजीनस कंपाउंड बाय प्लांट सेल ड्यूरिंग देयर कल्चर इज नोन एज। सब तो पहला तो एक्सोजीनस कंपाउंड किहड़े हो गए जिहड़े कि बाहरों दिते जाते हो, ठीक है, आउटर हो। बाय अ प्लांट सेल ड्यूरिंग देयर कल्चर इज नोन एज, किसी भी प्लांट सैल दे, किसी भी प्लांट सैल दे जे जो भी थोड़े मॉडिफिकेशन तुसी करोगे उसके कंपाउंड दे विच तां उसनूं की बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो कन्वर्जन बोथ ए एंड बी, और बायो फाइटो मॉडिफिकेशन। सो बायो फाइटो मॉडिफिकेशन वर्गे आई थिंक टेक्निक नहीं देखी, बट चलो देखते हैं एक बारी। ओके, सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है कि देखो बायो मीन्स कोई भी लिविंग चीज़, ट्रांसफॉर्म, उसनूं ट्रांसफॉर्म कर देना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैमिकल कंपाउंड विद इन अ लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग सिस्टम है, प्लांट की, क्योंकि बॉटनी की गल कर रहे हैं, मान लो कोई भी प्लांट है उस दे विच कोई भी पर्टिकुलर कैमिकल मिल रहा है, ठीक है, कोई भी लगा लो, मैनीटोल है, जिमें आज़ादी रक्टा इंडिका, नीम के आज़ादी रैक्टिन है, चलो असी उस गल कर लें। जे असी उस कैमिकल कंपाउंड में चेंज कर दिए विद इन द लिविंग सिस्टम, मतलब वो कंपाउंड कढ़िए उसनों किसी माइस के इंजैक्ट कर दिए, किसी भी चीज़ के उन्होंने असी ट्रांसफर कर चेंज कर दिए, दिस इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिक मटीरियल सच एज प्लांट और एनिमल वेस्ट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, असी किसी भी वेस्ट चीज़ को यूजेबल प्रोडक्ट के चेंज कर दिए, कन्वर्जन कर दिए, दैट इज कॉल्ड बायो कन्वर्जन बाय बायोलॉजिकल प्रोसैसेस और एजेंट सच एज सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तुसी किसी वेस्ट नू किसी मान लो कोई भी तुसी वेस्ट नू चेंज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक ही असी लगा लिए, रिसेंटली ही मैं कुछ पढ़िया सी कि कोई प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की खोज है, डिस्कवरी हुई है, हालांकि इस तरह दियाँ जो अब डिस्कवरीज बहुत सुनने मिलती ने। तुसी ऐसे तो एग्जाम्पल ला लो कि प्लास्टिक जो एक वेस्ट है, जो बैक्टीरिया उस वेस्ट को कंज्यूम करके उसनू डाइजेस्ट करके खत्म कर रहा है, दिस टाइप ऑफ प्रोसैस इज कॉल्ड बायो कन्वर्जन एंड बायो फाइटो मॉडिफिकेशन। फाइटो मीन्स प्लांट तो है, मॉडिफाई कर देना, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग ईदर जेनेटिक और मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड बायो मॉडिफिकेशन। सो साढ़े तो जो क्वेश्चन पूछा गया सी वो ये सी that modification of exogenous compound by plant cell during their culture is called, so इसका जो आंसर है इज कॉल्ड ये दोनों ही ने, सो राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन, hairy root culture for secondary metabolite production are induced by transferring plant cells with which one of the following। so hairy root culture of secondary metabolite production, सब तो पहला था की है, क्योंकि ये गल की गई है प्लांट्स ओके कल्चरिंग की जो गल की गई है, मान लो कि कल्चरिंग की आप गल करिए, सो इत्थे कोई प्लांट जो है वो लगाया गया टिशू कल्चर के विच, हेरी रूट कल्चर, हेरी रूट मतलब कि उत्थे बहुत सारिया रूट्स इस तरह देखिया गई, ठीक है। हेरी रूट कल्चर for secondary metabolites production are induced by transferring plant cell with which one of the following: virus, agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, agrobacterium rhizogens। so plant cell की असी गल करांगे, सो वायरस तो हो नहीं सकते, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, सो एग्रोबैक्टीरियम दियाँ दो स्पीशीज़ दित्तियां ने, एक ट्यूमेफेशियन एक राइजोजेंस। तुसी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो इत्थे कि राइजो जो वर्ड है ना, राइजो, राइजोबियम, माइकोराइजा, राइजा जो वर्ड है राइजो, दिस इज रिलेटेड टू रूट। सो इत्थे भी राइजा मतलब रूट है, तो इत्थे भी सानू रूट तो क्वेश्चन पूछा गया था, इट वुड बी द राइट आंसर, बट फिर भी असी चेक कर लिए। सो द हेरी रूट्स आर डिफरेंशिएटेड कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड रूट्स generated by the infection of wounded higher plant with agrobacterium rhizogens, ठीक है। अगेन जो है ऑप्शन डी एंड राइजोजन, जिवें कि मैं थोड़ा दस्या ही है कि राइजो वर्ड का मतलब ही रूट्स तो है, तो क्वेश्चन के विच भी सानू हेरी रूट्स की गल की गई थी। तुसी इस तरह के थोड़ा रिलेशन बना लिया करो, रिलेशन तुसी तां बना सकोगे जो तुहानू वर्ड्स का मतलब पता होए कि राइजो का मतलब की है, माइको का मतलब की है, ठीक
ठीक है। इस तरह के वर्ड्स ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅ ਨॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन हैवी मेटल आयंस एंड माइक्रोबियल सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है। किसते विच इंटरेक्शन पूछी गई है, बिटवीन हैवी मेटल आयंस, ठीक है, हैवी मेटल आयंस एंड माइक्रोबियल सरफेस। इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोबियल आयंस एंड माइक्रोबियल सरफेस is called biotransformation, no, बायोकन्वर्जन नो, ठीक है। बायोजॉर्प्शन या बायो माइनिंग भी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट चीज़ है। चलो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ चेक कर लिए ਬਾਇਓਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਇਓ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਇਓ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਆਇਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੈਪਿਡ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆਇਨਸ from aqueous solution onto functional group that are present on the surface of biomass. This process is independent in cellular metabolism. So this would be the our answer. But biomining बारे भी इसी देख लिए, this is a process of using microorganism or the microbes to extract metals, ठीक है। कोई भी ऐसी microorganism यूज़ करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ metal extract कर लिए of economic interest, ਜਿਹਦਾ कि ਸਾਨੂੰ actually economical भी कोई फ़ायदा होवे from rock ores, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा कि जो भी रॉक ओर्स वगैरह ने, ठीक है, मैटल्स वगैरह ने कुछ इस तरह के है बैक्टीरियाज वगैरह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हों तो असी मैटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट ऑल्सो बी यूज टू क्लीन अप द साइट दैट हैव बीन पोल्यूटेड विद मेटल्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बायो माइनिंग। सो द राइट आंसर इज वाइज ऑप्शन, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ इनडेफिनेट स्टेमन्स। देखो इनडेफिनेट स्टेमन्स की गल की है, फैमिलीज तो रिलेटेड क्वेश्चन है ये फैमिली तो सिर्फ इसका डायग्नोस्टिक फीचर पूछा होया है। सो मैं एक लैक्चर के मैं पहले ही दसिया है, मैं एक लैक्चर के थोनों ये भी आप कवर करांगे। सो इनडेफिनेट स्टेमन्स इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ लिलिएसी, मालवेसी, सोलेनेसी और कंपोस्टी। कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, सो द स्टेमन्स देखो इनडेफिनेट, हाँ जी, इनडेफिनेट स्टेमन्स का मतलब है इनडेफिनेट स्टेमन्स। इनडेफिनेट का मतलब एक चीज़ होंगी है डिफाइन, डेफिनेट मतलब कि 2, 4, 6 जिसकी कोई गिनती हो सके। इनडेफिनेट का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के, ठीक है। इनडेफिनेट देख सकते हो तुसी, ये एक चाइना रोज़ का पार्ट दिखाया होया। चाइना रोज़ बहुत कॉमन है ये प्लांट, इस जिन्हें भी देख सकते हो, ठीक है, इस जिन्हें भी ने दिस ऑल आर स्टेमन्स, मेल पार्ट है स्टेमन्स, ठीक है। सो इनडेफिनेट ने यस, मोन अडल्फस मतलब कि एक सिंगल फिलामेंट नाल जुड़े हुए ने सारे दे सारे, इस फिलामेंट नाल जुड़े हुए ने मोन अडल्फस एंड फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब। सो ये जो करैक्टर है दिस इज अ करैक्टर ऑफ फैमिली मालवेसी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन बहुत बार किया है, सी कार्लस लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसैप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं है तो मैंडल की गल है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नो, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी नो, binomial nomenclature yes, the D option is the right answer. Binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus. Concept of inheritance is given by Walter Sutton. Theory of heredity is given by Mendel and the law of limiting factor is given by Blackman. This is called Blackman's law of limiting factor। ये तुसी physiology ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया होना। Calps is obtained from, calps कोई एक मतलब seaweed है या कह लो algae। देखो मैं दसिया है ना एल्गी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन यही है दैट कैल्प्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एल्गी, मैराइन एल्गी, एक्वेटिक एल्गी और लाइकन। लाइकन तो वैसे तुसी एलिमिनेट कर ही दो। सो कैल्प्स आर लार्ज सीवीड बिलोंगिंग टू द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी ਨੂੰ ਅਸੀਂ फियोफाइसी भी बोलते हैं एंड फियोफाइसी इज अ मैराइन एल्गी मतलब जो कि ओशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, दैट लिव्स नियर द शोर एंड शैलो वाटर। सो दिस इज कैल्प्स। इस तरह की स्ट्रक्चर है, उसको असी कैल्प्स बोलते हैं। ये अलग अलग यूज हो सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 70th क्वेश्चन, द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स एज कंपेयर टू अदर ग्रीन प्लांट। देखो कंपैरिजन पूछा गया है ब्रायोफाइट के विच, पहला सानू यही पता हो भी ब्रायोफाइट के जो मेन कैरेक्टर्स ने वो की ने जो बाकियां दे विच नहीं है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स तो एल्गी भी प्रोड्यूस करती है, स्पोर तो फंगस भी प्रोड्यूस करती है। सो ये तो एलिमिनेट कर दी है।
दे लैक वैस्कुलर टिशू, इन्हां दे विच जाइलम फ्लोएम नहीं है, ओके, बट वो एल्गी दे विच भी नहीं है, सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। दे लैक रूट्स, रूट्स एल्गी दे विच भी एबसेंट ही ने, ठीक है, सो ये भी ऑप्शन गलत है। देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गेमीटोफाइट, ठीक है, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू गेमीटोफाइट। मान लो कि ये जो कोई गेमीटोफाइट है, इसका जो स्पोरोफाइट है या ठीक है, ये गेमीटोफाइट है, ठीक है, इसका इवन स्पोरोफाइट जो है फुटसीटा कैप्सूल जो बनेगा वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ अटैच ਹੋਵੇ, ठीक है, दिस इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज गेमीटोफाइट। सो इस तरह की जो कंडीशन है वो सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है इज अटैच टू द गेमीटोफाइट। द थैलस ऑफ ब्रायोफाइट इज अ हैप्लॉइड, द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस इज नोन एज गैमीटोफाइट। देखो ये इस इन्हें 4-5 लाइनों के विचों भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकते हैं। थैलस जो ब्रायोफाइट का है वो हैप्लॉइड है, गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, सो गैमीट्स किवें प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस होएगी, आर नोन एज गैमीटोफाइट। देयर आर बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोसाइट्स, बाईफ्लैजिलेटेड मतलब इस तरह दो जो फ्लैजिला स्पर्मेटोसाइट एंड दे रीच द एग्स विच आर इनसाइड द थैलस, द स्पर्मेटोसाइट्स कैन फर्टिलाइज द एग रिजल्टिंग इन डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, n+n 2n मतलब कि डिप्लॉयड जाइगोट एक बन जाएगा, डिप्लॉयड प्लांट। देयर आर प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्पोर्स जो ने किहड़ी डिवीजन तो बाद बनते हैं, वो मियोसिस तो बाद बनते हैं, विच इज़ नोन एज स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गेमीटोफाइट इज नोन एज पैरासिटिक ऑन इट, मतलब उसे तो ही न्यूट्रिशन लेंदे ने एंड पैरासिटिक टाइप की इंटरैक्शन शो करते हैं। नैक्सट जो क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन दैट इज अ फर्न डिफर फ्रॉम द मॉस इन हैविंग। देखो फर्न जो है वो एक टेरिडोफाइट है एंड जो मॉस है वो एक ब्रायोफाइट है। सिंपल जा देखो तो बस एक डिफरेंस पूछा गया है कि फर्न जो ने ब्रायोफाइट्स या मॉस नालों किवें डिफरेंट ने। कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, फर्न्स जो ने दे आर टेरिडोफाइट एंड मॉस आर ब्रायोफाइट। फर्न्स आर स्पोरोफाइटिक डोमीनेंट, मतलब कि इन्होंने जो डोमीनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। मॉस आर गेमीटोफिटिक डोमीनेंट, इन्होंने जो डोमीनेंट जनरेशन है वो गेमीटोफिटिक जनरेशन है। फर्न्स हैव राइजोम्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो राइजोम है या अंडरग्राउंड स्टेम है, जो कि मॉसेस हैव राइजॉइड, रूट वर्गी स्ट्रक्चर है, सिंपल रूट लाइक स्ट्रक्चर, कोई मतलब एडी एडवांस नहीं है। सो एक बार असी देखिए ऑप्शन साड़ियाँ की ने। सो एक किवें डिफर ने दे इन एन इंडिपेंडेंट गेमीटोफाइट, नो, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ आर्केगोनिया, देखो आर्केगोनिया एंड एंथेरोजाइट का प्रेजेंट दोनों च ही ने, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, क्योंकि फर्न दे कोल इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, जो कि ब्रायोफाइट जड़े ने इन्हां दे विच एक दूजे दे जो इन्हां दा स्पोरोफाइट है वो गेमीटोफाइट ते डिपेंड करता है। सो इट वुड बी द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, द फ्लोइम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। देखो बार बार सारे क्वेश्चन दे विच डिफरेंस ही पूछा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म दे विच फ्लोइम है एंड एंजियोस्पर्म दे विच फ्लोइम है वो दूजे तो किवें डिफर है, ठीक है। पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब या स्क्लेरेन्काइमा। सो द राइट आंसर जो है वो कंपेनियन सेल है। द कंपेनियन सेल जो ने ये स्पैशल टाइप के पेरेन्काइमा सैल्स है, ये हैल्प की करते हैं। देखो फ्लोइम का काम ही की है फूड मटीरियल नू ट्रांसपोर्ट करना। फूड की है साढ़े को शुगर इनटू द कैविटी ऑफ सीव ट्यूब मैंबर्स, देयर आर प्रेजेंट इन द फ्लोइम ऑफ एंजियोस्पर्म। सानू पता होना चाहिए कि जो वास्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादातर जोड़ा वैल डेवलप्ड है वो एंजियोस्पर्म दे विच मिलता है, बट एबसेंट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म दे विच जो वास्कुलर सिस्टम है वो एंजियोस्पर्म जितना एडवांस नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज कि जिम्नोस्पर्म जो पूछा गया साढ़े को टेरिडोफाइट दे विच कंपेनियन सैल जो ने एबसेंट ने। ये फ्लोइम टिशू की जो डायग्राम है इस फ्लोइम सैल्स ने, ठीक है, पहला कंपोनेंट फ्लोइम का, दूसरा है सीव ट्यूब, तीसरा है कंपेनियन सेल्स, ठीक है। जाइलम फ्लोइम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सैल्स है, ठीक है, बट जिम्नोस्पर्म दे विच कंपेनियन सैल जो ने वो एबसेंट ने। सो द राइट आंसर इज कंपेनियन सैल्स। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश अ मोनोकोट प्लांट फ्रॉम डायकोट प्लांट। सिंपल जा थानू मोनोकोट
ਐਂਡ ਡਾਇਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੀਵਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਦੀ ਵਿਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੀਚਰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਅ ਮੋਨੋਕੋਟ ਪਲਾਂਟ ਫਰੋਮ ਡਾਇਕੋਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। विनेशन जो पैटर्न है लीव्स के उत्ते नैटवर्क का। वर्नेशन एंड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जो है वो है जो पैटल्स का अरेंजमेंट। पर असी जी एक मोनोकोट प्लांट से डायकोट प्लांट को डिस्टिंग्विश करना है तो वो सानू की चाहिए है। सो विनेशन की है, विनेशन इज़ द पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, ठीक है। तुसी देख सकते हो इस तरह का पैटर्न है, यह पैरलर विनेशन है एंड यह रेटिकुलेट, मतलब एक नैटवर्क वर्गी। सो ये है विनेशन। आप गल की भी है कि मोनोकोट के विच तुहानू इस तरह की देखने को मिलेगी एंड डायकोट के विच तुहानू इस तरह देखने को मिल सकती है। सो साडा आंसर तो यही ठीक हो सकता है, बट एक बार होर देख लीए। विनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बड स्केल और यंग लीव्स इन अ लीफ बड बिफोर इट ओपन्स। वरनेशन तुसी देख सकते हो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट, कॉइलिंग जी बन जाती है लीव्स की। ये सानू डायकोट मोनोकोट दे विच नहीं देखने को मिलते। इस तो बिना फाइलोटैक्सी की गल करा कि जे लीव्स इस तरह लगे ने एक दूजे के आमने सामने, दिस इज़ कॉल्ड ओपोजिट। जे है इस तरह ऑल्टरनेट लगे ने तो इट इज़ ऑल्टरनेट। जे है इस तरह ग्रुप के विच लगे ने तो इस इज़ कॉल्ड वर्ड। मोनोकोट ते डायकोट के विच इस तरह का डिफरेंस किते देखने को नहीं मिलता। एस्टिवेशन तुसी देखा होना, जो कोरोला है या यू कैन से पैटल्स दा अरेंजमेंट, ठीक है। तुसी इस तरह के अलग अलग अरेंजमेंट देखे होंगे, बट इस तरह के अरेंजमेंट भी सानू मोनोकोट डायकोट के डिफरेंस लिए जरूरी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ विनेशन। विनेशन का जो है असी डायकोट ते मोनोकोट के डिफरेंस लिए असी चेक कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन है, हाइपनथोडियम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, ओके। सो हाइपनथोडियम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, इन्फ्लोरेसेंस तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाइपनथोडियम एक टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो थोनू किस दे विच देखने को मिलती है, मलबरी, फाइकस, पॉइंसेटिया या पाइनएप्पल दे विच। सो द राइट ऑप्शन इज़ हाइपनथोडियम एक कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस फाइकस दी है। एक्चुअली इस दे विच है कि तुसी देख सकते हो हाइपनथोडियम दे विच इस तरह फ्लावर्स अरेंज ने, ठीक है, इस तरह फ्लावर्स अरेंज ने। मेल फ्लावर है जो इस बाहर वालों ने मेल फ्लावर ने एंड फीमेल फ्लावर है जो थोड़ा अंदर वालों ने, ठीक है। सो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस थोनू बनियान जो बोर्ड का पेड़ है, ठीक है, या तुसी कह सकते हो बरगद, बरगद भी बोलते हैं हिंदी के विच, अपनी पंजाबी लैंग्वेज विच असीं बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उस दे विच थोनू देखने को मिलता है फाइकस, फैमिली मोरेसी। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉर्क टिशू। कॉर्क टिशू जो है वो एक्चुअल दे विच बार्क दे विच जिहड़े टिशू ने बार्क तो रिलेटेड है। सो इट इज़ कॉर्क टिशू अगे की बनाता है, फैलोजन, पेरीबिलम, पेरीड्रम, फेलम। यह प्लांट अनैटमी दे विचों क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहला तो असीं देख लीए फैलोजन की है। फैलोजन की है, इट इज़ अ सैकेंडरी मेरिस्टम। ये जिन्ने भी ऑप्शंस ने सारे सैकेंडरी मेरिस्टम दे विच तुसीं देख लियो। सैकेंडरी मेरिस्टम बिल्कुल चैप्टर के एंड से दिता होएगा। दिस इज़ अ सैकेंडरी मेरिस्टम दैट इनिशिएट फैलम, मतलब कि फैलोजन तो फैलम बनेगा, फैलोजन तो फैलम बनेगा ते फैलोडर्म, दो चीज़ां बन गई, एक फैलम एक फैलोडर्म। इन द पेरीडर्म ऑफ अ स्टैम और रूट, स्टैम ते रूट दा जदों तुसीं सैक्शन देखो, स्टैम ते रूट के सैक्शन दे विच जो है पेरीडर्म है, उस पेरीडर्म दे विच जो है फैलम ते फैलोडर्म बननगियां। पेरीबिलम की है, हुण असीं ये देखनी है। पेरीबिलम इज़ अ प्राइमरी मेरिस्टम दैट गिव राइज टू द
cortex and is located between the pleroma and dermatogen। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ टर्म्स मे भी कन्फ्यूज़ कर रही होंगी, ये थोड़ा कंसैप्ट पढ़ना ही पेगा। जो सैकेंडरी जो ग्रोथ है सैकेंडरी मेरिस्टेम वाला तुसी एक बार पढ़ लो तो थोड़ा थोड़ा बहुत यदा पता चल जाएगा। द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द रूट टिप। सो रूट टिप जो है मतलब ये जो रूट है ओके, सो जो तुसी रूट टिप नूं चंगी तरह पढ़िया होवे, सो दिस इज द रूट टिप। So a primary meristem that give rise to the cortex and is located between the pleroma and dermatogen, the cortical region of the root tip। मतलब root tip का जो एक cortical region है, इस region ते थोनों इस तरह पेरिबलम मिलेगा। पेरिडर्म द कोर की आउटर लेयर ऑफ प्लांट स्टेम। स्टेम तुसी देखी होनी है, उसके बाहर जो तुसी बार्क देखते हो सक जिन्हों असीं बोलते हैं दैट इज़ पेरीडर्म का मतलब स्किन तो होंदा है जो तुसी देख पा रहे हो, जो तुसी बार्क देख पा रहे हो, दैट इज़ फॉर्म इन सैकेंडरी थिकनिंग और एज अ रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। उस देखी देखे होने कई बार क्रैक्स भी होंगे ने, ठीक है, वो पेरीडर्म के क्रैक्स ने। फैलम की है, इट इज़ द आउटर टिश्यू ऑफ बार्क अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सैल गिव राइज टू कॉक टिश्यू। एक्चुअल दे विच जिहड़ी तुसी बार्क देखते हो, एक्चुअल दे विच जिहड़ा तुसी सक देखते हो, ठीक है, दैट इज़ फैलम। सो साडा क्वेश्चन भी यही सी, क्वेश्चन सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू किसों बनता है? कॉर्क टिश्यू जो है वो फैलम तो बनता है। ऑप्शन जो राइट है दैट इज ऑप्शन डी। द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, अगेन जो है ये अनाटमी का ही क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस दे विच प्रेजेंट है? पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कोलन काइमा। सो कोलन काइमा दे विच आई थिंक ये एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कोलन काइमा दे विच इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती। द इनरमोस्ट कॉर्टेक्स कॉर्टिकल लेयर ऑफ डायकोट रूट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सानू पता ही है, देखो एक बार डायग्राम देख लो। सब तो पहला जो आउटर लेयर है इसनों असीं बोलते हैं एपीडर्मिस, ठीक है, बिल्कुल आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपीडर्मिस, एपीडर्मिस। एंड जो इस तरह थोड़ा दिख रहे ने एक ही ने स्टोमेटा, ठीक है। एपीडर्मिस तो जो तुसी अंदर जाओगे और तुसी ग्रीन वाला पोर्शन देख लो, आ वाला, दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स तो बाद थोड़ा एक होर लेयर दिखेगी, मैं रेड कलर ना शो करा, दिस, ठीक है, ये जो मैं रेड कलर ना शो की है एक्चुअल विच क्या है, दिस इज एंडोडर्मिस। हुण जे तुसी इस एंडोडर्मिस दे सैल नूं थोड़ा वड्डा करके देख लो, ये देख सकते हो तुसी, ठीक है, आ देख सकते हो एंडोडर्मिस दे सैल नूं देखो तो इस जो रेड कलर नाल शो कर रहा है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्वेश्चन थोड़ी तो की पूछा गया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कितने प्रेजेंट है, तो ऑप्शन दे विच तुहानूं एंडोडर्मिस भी दी है। सो द राइट ऑप्शन इज एंडोडर्मिस। इट्स सेल्स गेट सुबराइज्ड, मतलब कुछ चीज़ अंदर फिल हो जाएगी इससे, सॉरी, ऑन द रेडियल एंड इनर वॉल, दिस थिकनिंग्स आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। काम की है ना दा, they block the passive flow of materials such as water and solute from passing into the steel of plant, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। अ बायसेक्सुअल फ्लावर, मैं पहले ही दसिया है बायसेक्सुअल फ्लावर की जो असीं गल की मतलब कि इहदे विच मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होणगे सेम प्लांट के उत्ते, विच रिमेन क्लोज्ड। कुछ इहो जिहे फ्लावर्स ने जो हमेशा क्लोज रहिंदे ने, कुछ इहो जिहे ने जिहड़े ओपन हुंदे ने। सो इत्थे सानू क्लोज बारे पूछा गया है तो उन्होंने असीं की बोलते हैं, होमोगेमस, हेट्रोगेमस, पॉलीगेमस, क्लिस्टोगेमस। देखो होमोगेमस, हेट्रोगेमस, पॉलीगेमस का मतलब तो प्लांट एक फ्लावर का खुद नाल या बाकी फ्लावर का रिलेशन है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग नाल नहीं है। ओपनिंग या क्लोजिंग नाल जो है उस अपना क्लिस्टोगेमस जो है रिलेट करता है, बट एक बार एक्सप्लेनेशन देख लिए। क्लिस्टोगेमस की है, क्लिस्टोगेमी मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर दैट डू नॉट ओपन, ठीक है, वो फ्लावर जोड़े कि ओपन नहीं होंगे, हमेशा क्लोज ही रहेंगे। क्यों क्लोज रहते हैं? एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोगेमी। इन कंट्रास्ट फ्लावर दैट आर ओपन दैट ओपन आर कॉल्ड केसमोगेमस, ठीक है। जो बंद रहते हैं वो क्लिस्टोगेमस, जो ओपन रहन वो कैसमोगेमस। इंपोर्टेंट टर्म्स ने, पॉलिनेशन दी टर्म्स हर बार ही पेपर पूछिया गई ने। ऑटोगेमी की है, गिटोनोगेमी की है, जीनोगेमी,
तो प्लीज़ पढ़ लेना। सो अज आप 25 क्वेश्चन ही करांगे क्योंकि आई थिंक वड्डी वीडियो बनाने नालों ज़्यादा चंगा है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो दे विच ईवन आप हौली चलीए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट जाने की लोड़ नहीं है। जे ही वीडियो आई थिंक 2 घंटे की बने तो शायद इनू कोई इहदा थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन नहीं करता क्योंकि आप इन्ना टाइम जो सीटिंग नहीं दे सकते। सो आप 25 क्वेश्चन ही करांगे। सो अज का लास्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड। कैस्टर ऑयल जो है, ठीक है, वो इन्हों के विचों किहड़े प्लांट सीड्स तो बनता है। सेसमे इंडिकम, सेसमे जो है, सेसमे इंडिकम इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ जो तिल है, ठीक है, तिल उन्होंने सेसमे इंडिकम बोलते हैं। लाइनम यूसीटेटिसिमम जो है लाइनम, ठीक है। देन ब्रासिका कंपेट्रिस्ता अगेन सरों है, दैट इज़ वेरी कॉमन सरों। एंड रेसिनस क्यूमिनस इज़ अरंडी जिन्होंने बोलते हैं अरंडी, ठीक है। लाइनम इज़ अलसी। आई थिंक तुसी पंजाबी दे विच इन्हां दे नाम सुने होंगे, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स में इन्हां दे साइंटिफिक नेम भी याद होंगे। चलो जे है वैल एंड गुड, जे नहीं है तो तुसी याद रख लो। सो कैस्टर ऑयल साडों पूछा गया, कैस्टर ऑयल एक्चुअल दे विच अरंडी दे तेल नूं बोलते हैं, अरिंड इनू हिंदी दे विच अरिंड बोलते हैं, ठीक है। सो आप एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीए। सो रिसिनस ही साडा राइट ऑप्शन है। रिसिनस क्यूमिनस गिव्स कैस्टर ऑयल। इस तो बिना सेसमम इंडिकम है, वो सेसमे ऑयल दिंदा है। तिल का तेल जो है वो जोड़ों के दर्द लई वधिया मन्निया जाता है। लाइनम जो है वो फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी का तेल है। ब्रासिका कंपेट्रिस दैट इज़ सरसों ऑयल। सो अज आप इन्ने ही क्वेश्चन करांगे। नैक्सट वीडियो के विच मैं तुहानूं बाकी के जो क्वेश्चन ने आप 25 क्वेश्चन तो बिना आप उन्हां दा भी जो है डिस्कस करांगे। आई होप कि तुहानूं इत्थों तक समझ आया होवे। सो स्टूडेंट्स अज आप 25 क्वेश्चनस किए ने बॉटनी के पेपर, एक सैकेंड पेपर आप शुरू किया है अज। सो बाकी के जो 25 क्वेश्चनस ने मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही उन्होंने अपलोड करा। एंड मैं एक बहुत इंपोर्टेंट गल थोड़े नाल शेयर करना चाहना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने कह रहे हैं कि जिन्होंने मास्टर कैडर का देना है या जो मैरिटोरीअस वाले ने कि उन्होंने अलग अलग वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं उन्होंने दसदा कि क्वेश्चन बहुत ऑलमोस्ट सारे ही कह लो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ने जो रिपीट होए ने। मास्टर कैडर या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ कोई ज़्यादा एडा डिफरेंस नहीं देखा कि उसदे विच डिफिकल्टी लैवल थोड़ा ज़्यादा होवे। मे भी कुछ क्वेश्चन दे विच है पर इन्ना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो तुसी सारी वीडियोज़ दे गो थ्रू हो जाओ जिन्होंने ने भी मैरिटोरीअस लैक्चरर की तैयारी करे ने, वो मास्टर कैडर के प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़ लें तो उन्होंने बैटर है। सो नैक्सट वीडियो जो है 25 क्वेश्चन के नाल आप लैके आवांगे। उस तो बिना इन्हों तो बाद जो आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करांगे आप जोलॉजी पार्ट के विचों करांगे। सो आई होप कि तुहानूं मेरा इत्थों तक जो भी है समझ आया होवे। जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो। इस तो बिना मेरा एक टैलीग्राम चैनल भी है बायोफाई करके, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के विच तुहानूं उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी मटीरियल है या ईवन यही जो स्लाइड्स ने इन्हों PDF फॉर्म के मैं उत्थे अपलोड करदा तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।